Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to continue chapter number 5 from class 8, The Summit Within. I hope you will be listening to me very carefully and will be getting the valuable points from each paragraph. So now let's get ready to continue. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. So here Ahluwalia speaks that कि जब भी मैं पीछे देखता हूँ whenever I look back, so I find that मैं देखता हूँ महसूस करता हूँ कि मीन्स अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है मीन्स येट आई हैव नॉट एक्सप्लेन वाई डिड आई क्लाइम द माउंट एवरेस्ट कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स. सो इस तरह का जवाब देना बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि वाई यू ब्रीथ कि तुम सांस क्यों लेते हो. क्योंकि देखिए फॉर ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एवरी क्रिएचर who or that actually is considered for breathing, right? So they cannot go without breathe. इस धरती पर जो लिविंग बींग्स है they cannot go without breathing. सांस के बिना जी नहीं सकते, सांस लेना बहुत ज़रूरी है. Why do you help your neighbor when somebody is in need? So it is our obligation to help the people. And why do you want to do good acts? Being human, we people are supposed to perform good deeds. Then only we achieve something. So similarly, reaching the summit of Mount Everest, वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही था. बिकॉज आई हैड डिटर्मिनेशन, आई इंटेंडेड इन रीचिंग देयर. देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसका कोई फाइनल आंसर भी नहीं है. अब जैसे हम ब्रीथ करते हैं, दैट इज़ क्वाइट नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एवरी क्रिएचर ऑन दिस अर्थ. तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. इट वॉज क्वाइट नेसेसरी टू, इट वॉज इट वॉज क्वाइट मैंडेटरी फॉर रीचिंग देयर द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. और देखिए यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू स्पीक हियर कि रीचिंग द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू योर फिजिकल टास्क, फिजिकल लेबर. द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. Here he wants to say that एक व्यक्ति who has visited the summit of Mount Everest, so he becomes a scholar, he becomes very much conscious. वो ज्ञानी बन जाता है. He has got a lot of experience. He becomes daring. He becomes very courageous. तो ये जो बहुत बड़ी दुनिया है, तो उसके पास कुछ ऐसा होता है शेयर करने के लिए जो उसे हमेशा that makes him high, that makes him reach the highest throughout the world.
The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. अगर हम बात करते हैं, we people talk about labor that actually is used reaching the summit of the Mount Everest. वो एक अलग बात है, that is the another matter, right? कि उसमें फिजिकल लेबर तो लगता ही है, इट डिमांड्स, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी रीचिंग द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट. बट समथिंग एल्स इज ऑल्सो देयर अपार्ट फ्रॉम दैट, कि उस चीज़ के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दैट यू नो रीचिंग डिमांड्स. दिस इज मोर टू इट देन दैट. और वो मीन्स कंपैरेटिवली लेबर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. शारीरिक मेहनत जो हमने की है उससे वो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल लेबर. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि हम समझते हैं, वी फील दैट नाउ आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई हैव डन समथिंग, that I am something in this world, means I have achieved a very Herculean task. तो ये एक ऐसी चीज़ होती है that boosts you up, that encourages you, that always motivates you to proceed in life. Now my dear students, let us move ahead. There is the satisfaction of a deep urge, to rise above one's surroundings. What do you feel in it after achieving something and after the completion of Herculean task that you have done? You are really satisfied. You are really satisfied with the performance that you have achieved, that you have done. और अपने आसपास तुम एक पॉजिटिविटी महसूस करते हो. You just feel some kind of positivity around yourself. That once you decided something, it has taken a lot of efforts, but you have got it, you have achieved it, you have acquired it. It is the eternal love for adventure in man. It is some kind of hidden love towards your passion. It is some kind of hidden love, hidden hunger towards your passion, towards your dream. This experience is not merely physical. Here अहलूवालिया वुड लाइक टू स्पीक दैट, उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये केवल एक फिजिकल ही नहीं है, बट इट इज़ इमोशनल एज वेल. ये इमोशनल भी है, दैट मेक्स यू इमोशनल. थिंक फॉर अ वाइल अबाउट दैट मोमेंट, अबाउट दैट टाइम, अबाउट दैट डे, once you started taking first step towards your journey, and after a very long time, after making lot of efforts, once you get it, so it makes you emotional, the winning of that thing. Once you conquering that, so that makes you emotional. वो चीज़ आपको इमोशनल बना देती है. It is spiritual as well. ये आपको स्पिरिचुअलिज्म से भी जोड़ती है, राइट? Consider a typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. You form in, he cuts the steps in the hard ice
then he belays and you inch your way up. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर एलुवालिया एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताते हैं. ही एक्चुअली हैज़ गोट अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड. वो आपको समझाने के लिए बताते हैं कि जैसे आप कोई एक मीन्स वंस यू आर मीन्स just climbing the summit, climbing the highest peak of the Mount Everest, कि तुम बेसिकली क्या करते हो. सपोज यू पीपल आर टू, तुम और तुम्हारा दोस्त, एंड यू नो क्लाइंबिंग एंड रीचिंग द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट. तुम जा रहे हो, जो तुम्हारा दोस्त है या फिर तुम हो, तो तुम्हारे पास एक रस्सी है एंड यू शेयर इट. तुम इस रस्सी को शेयर करते हो अपने दूसरे साथी के साथ. एंड यू बिकम सो मच इंटेंडेड, यू बिकम सो मच फर्म. और तुम बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम अटल होते हो उस चीज़ के लिए कि कोई किसी तरह की कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस. बेसिकली जो तुम्हारा दोस्त है, यू नो, ही कीप्स मेकिंग द वे फॉर यू by cutting the steps in the hard ice. अब तुम्हें सामना करना पड़ता है, you have got to face the ice as well. रास्ते बर्फ़ में से रास्ते आपको निकालने पड़ते हैं, बर्फ़ को काट के आगे बढ़ना पड़ता है. Then he believes and you inch. तो वो बेसिकली फिर रस्सी बांधता है, राइट. और उसके बाद यू इंच योर वे अप, और तुम कहीं जाके 1 इंच आगे बढ़ते हो. नाउ यू कैन थिंक दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज़, हाउ टिपिकल इट इज़. द क्लाइंब इज ग्रिम. ये जो चढ़ाई होती है ये बहुत मुश्किल होती है. दैट इज़ really like Herculean task that takes your all the efforts from each and every nerve. Your strain every nerve as you take every step. Means हर step पे आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ती है. Means you have got to use your each and every nerve. मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. देखिए, देयर हैव बीन मेनी एग्जाम्पल्स हु हैव अचीव्ड द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, नॉट ओनली रिलेटेड टू माउंट एवरेस्ट बट अदर्स एज वेल. तो उन लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं अपने दोस्तों की हेल्प से. मीन्स समबडी वुड हैव बीन ओवर देयर हु रियली हेल्प्ड हिज और हर फ्रेंड्स. तो ये दोस्तों की मदद से हो पाया. इट बिकेम पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स. मीन्स रेस्ट ऑफ द क्लाइंबर्स. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्ड हाउ they needed just that help. उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की है. मीन्स फेमस क्लाइंबर्स हैव मेंशन्ड इन देयर क्लाइंबिंग, इन देयर एक्सपीरियंस, दैट हाउ डिड दे गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि उन लोगों को कैसे दूसरों से ज़रूरत पड़ती थी. else they might have given up. अगर मीन्स somebody would not have been over there, so they might have given up. अगर मदद नहीं मिलती तो शायद वो अपनी हिम्मत हार गए होते. They might have given up in between. Now let us move ahead. आगे बढ़ते हैं बेटा. Breathing is difficult. वहाँ पर सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है. You curse yourself for having let yourself in for this. और तुम बार बार अपने आप को कर्स करते हो. मीन्स यू कीप
cursing yourself that why have I come here, why have I decided reaching the summit of the Mount Everest, why did I do this, why did I think of reaching the highest peak of this world. तो इस तरह की मीन्स यू कीप कर्सिंग योर सेल्फ. Now let us move ahead. You wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. I repeat this line, you wonder why you ever undertook the ascent. मीन्स अपने आप को तुम बोलते रहते हो, मीन्स हर बार कि चलो, और मीन्स कि एक स्टेप के बाद तुम दूसरे स्टेप पे चले जाते हो. यू कीप गोइंग अहेड, यू कीप मूविंग अहेड, राइट. और मीन्स इट इज़ रियली वेरी सरप्राइजिंग जब आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप उठाते हो एंड यू कीप मूविंग अहेड. सो दैट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज बिफोर टेकिंग अ स्टेप यू गेट फ्राइटेंड दैट इट विल बी और नॉट, ये हो भी पाएगा या नहीं. देर आर मोमेंट्स वेन यू फील लाइक गोइंग बैक. कई बार आपका मन करता है दैट जस्ट leave it on the way, just quit it on the way and let's get back to the ground. वापस चलते हैं. It would be sheer relief to go down. आप सोचते हैं कि नीचे जाना मतलब आसान रहेगा and full of relief रहेगा, but nothing is like that. Instead of ऊपर जाने के बजाय, but almost at once you snap out of that mode. फिर अचानक तुम उस ख्याल से बाहर आते हो, means you just come out from that negative feeling. There is something in you that doesn't let you give up. कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा होता है, some kind of motivation, keep going in your mind and heart that boosts you up, that doesn't let you give up, जो आपको हार नहीं मानने देता. So my dear students, enough for the day. Rest part of this chapter will be taken in my next video. Thank you very much.